Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and I am here to discuss the experience of different students who appeared for the ATC exam today. Okay, so this is a very moment of happiness for us that the things which we directed to the students, which we guided to the students, so paper was in the same direction. Okay, nothing was from any other concept or any other topic, only the topics which we have focused more. Okay, those were the topics there in the exam. So this is a very good news for all of you who prepared with us for this exam, and I wish you all the best for getting good results in this exam. And many students provided me feedback about different subjects, so I am going to share that with you. Okay, so in this paper, this is the previous information which all of you know. Okay, there were total 120 questions and these you have to solve in 120 minutes. So time was limited, 1 minute, one question. Okay, and from different sections we know this number of questions already, and these were provided by the website of AI. So according to that, paper was mainly. Now coming to the main topics. Okay, so if we see the syllabus as mentioned by the airport authority in their website, so they mentioned that it is 10+2 level. Okay, so the good thing is that all the questions were from those sections. The main focus was not engineering. Okay, they did not ask questions from engineering background mainly, they asked questions from 12th class level. All the topics were from 11th 12th class standard. So that is the good thing, that they did not ask any question outside. Okay, many students, many teachers were trying to go outside. Many teachers were guiding to the students to go for engineering mathematics, that prepare this also, but no. I have made a video in the starting of this recruitment process in which I have cleared all the topics. So all the questions were according to that, which I also mentioned in the video. अगर आपने वो वीडियो देखा है, ठीक है, मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में बनाया था जिसमें पूरा एनालिसिस किया था कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ 2021 पेपर. ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, क्योंकि पहले सभी लोग कन्फ्यूजन में थे कि मतलब कई सारे टीचर्स जो थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ भी मूव कर रहे थे. जैसे ये जो फिजिक्स है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आ सकता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आ सकता है, और जो मैथमेटिक्स है वो इंजीनियरिंग मैथ के जो टॉपिक्स हैं जैसे न्यूमेरिकल मेथड भी कई लोगों ने मेंशन किया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी किया, कॉम्प्लेक्स का पूरा सिस्टम बताया. तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि भाई उस डायरेक्शन में आप अपना टाइम ज़्यादा मत लगाओ. आप 12th क्लास उन्होंने अगर मेंशन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, फोकस ऑन दैट. और 2021 का हमारे पास एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, तो डिटेल वीडियो आपको पुराना वापस भी देख सकते हो. सब कुछ वही चीज़ें हुई जैसा हमने एक बार मतलब एक अनुमान लगाया था एग्ज़ाम के बारे में. ओके, सो फिजिक्स में जो हम टॉपिक्स की अगर बात करें, दोनों स्लॉट्स का 2 शिफ्ट में पेपर था, तो रफली एस्टिमेशन जो हमने लिया है अलग अलग स्टूडेंट से, मैकेनिक्स से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन वर देयर, मैग्नेटिज्म एंड EM वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, अगर मेरा आप वो पुराना वीडियो चेक करोगे उसमें आपको मैंने पहले बोला था कि 15 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं इन दोनों से मिला के, 10 to 15 क्वेश्चंस. और वही है यहाँ पे कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म और EM वेव से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 5 से 7 के आसपास क्वेश्चन थे. तो 12 से 15 के बीच का तो यही दोनों सेक्शन बना देते हैं आपका. ठीक है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से थे, तो हमने रफ एस्टिमेशन लिया है अलग अलग बच्चों से. ऑप्टिक्स से 4 to 5 क्वेश्चन. थोड़ा सा चेंज आया है कि मॉडर्न फिजिक्स से पहले जैसे कम क्वेश्चन आते थे, इस बार मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, 4 to 5 क्वेश्चन, एंड FM से भी आपके 2 क्वेश्चन थे. तो ये हमारे मेन टॉपिक्स रहे. सो आपको जब भी ये एग्जाम देना होगा, आगे भी हम इसको प्लान कर सकते हैं इसी डायरेक्शन में कि दीज 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो हम बार बार बच्चों को बोल रहे थे कि इन दोनों को तो पक्का ही करना है आपको. ये काफ़ी बड़ा नंबर आपको दे देंगे एग्जाम में, और साथ में फिर रिमेनिंग टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो फॉलो किया उन्होंने बेनिफिट लिया है एग्जाम का, और काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है उन्होंने. नाउ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स. तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया गया था इस एजुकेशन लाइन में, वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या 12th क्लास लेवल. ठीक है ना, तो
मैंने आपको पहले दिन ही जो वीडियो बनाया था अपना डिटेल में, जिसको काफ़ी बच्चों ने देखा भी है, उसको फॉलो भी किया है, ठीक है। अराउंड 40,000 के आसपास, 35 to 40,000 के आसपास बच्चे उसको देख चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको फिर फॉलो करना स्टार्ट किया, और अकॉर्डिंगली फिर जो दूसरे टीचर्स जो मतलब उस डायरेक्शन में मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ बच्चों को शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और वो भी फिर वापस इसी उसमें आए। तो हमने उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना था जो मैंने वहाँ पे बताया था, और वही हुआ कि अगर हम टॉपिक्स देखें तो मेरा पहला टॉपिक ही क्या था, 3D और वेक्टर, वहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था कि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने बच्चों को लाइव क्लास में भी पढ़ाया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वही किया कि वेक्टर 3D सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, एटलीस्ट आपके एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास वहाँ पे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, वही हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स थे, जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, प्रोबेबिलिटी से पिछले साल भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इस बार भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो वही पैटर्न फॉलो किया। टिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने मेंशन किया था, और इस बार भी टिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए हैं, टिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स थे एडिशनल, मैंने बच्चों को बोला था कि भाई आपको एडिशनली क्या करना है कि कैलकुलस और ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं दूसरे कुछ सेट्स, रिलेशन, फंक्शन हुआ जैसे, ठीक है, मैट्रिसेस हुआ, इनको भी साइड में प्रिपेयर करना है। पहली प्रायोरिटी हमारे हिसाब से वेक्टर 3D और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टिग्नोमेट्री, इन पे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमें फिर कैलकुलस वाला पार्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कैलकुलस का जो पार्ट है या मैट्रिक्स है वो बच्चे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, वो सारा प्रिपेयर्ड होता है। ये टॉपिक्स मेनली बच्चे कम पढ़ते हैं, तो इन पे हमने इसलिए ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा था। वही फ़ायदा हुआ बच्चों को, ठीक है, कि मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। और कैलकुलस में जो सबसे ज़्यादा फोकस हमने किया था कि भाई एरिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही होता है एग्जाम्स में, आज भी एरिया के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दो टॉपिक प्रायोरिटी पे मैंने कैलकुलस से बच्चों को बोला और वहाँ से क्वेश्चन आए, फ़ायदा हुआ बच्चों को काफ़ी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमारे मेन रहे मैथमेटिक्स में, और अच्छी बात ये है कि मैक्सिमम बच्चों ने मैथमेटिक्स से सेटिस्फाइड है और अच्छा परफॉर्म किया है काफ़ी बच्चों ने इसमें, ठीक है ना। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एक बार समझ लिया तो ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन का लेवल था दैट वाज इजी, और काफ़ी बच्चों ने जो ट्रेंड में मतलब इंग्लिश पढ़ते रहते हैं रेगुलरली, वो अपने आप उसको सोल्व कर सकता है, ठीक है ना। और अगर किसी ने मतलब यूरोपीडिया के जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसने जो क्लासेस हुई हैं उनकी रेगुलर, अगर वो फॉलो कर लिए तो उसी से काम चल जाएगा उनका, ऐसा हुआ है बच्चों के साथ में, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे जिनको नॉलेज थी बेसिक, उन्होंने सबने अच्छे क्वेश्चन मैथ के इंग्लिश के सोल्व किए हैं, और ईजी क्वेश्चन थे, पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। जो मेन टॉपिक्स वहाँ पे रहे वो ईडीएम्स के ऊपर क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस के ऊपर, जंबल सेंटेंसेस के ऊपर या सेंटेंस करेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल नॉर्मल था इसके क्वेश्चंस का। देन रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें सिटिंग अरेंजमेंट आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, जहां से लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर दोनों तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा नंबर क्वेश्चंस का उन्होंने पूछा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी को प्रिपेयर करके रखना है हमेशा। ब्लड रिलेशन और बोर्ड मास, अल्फा सीरीज, डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनइक्वालिटी के ऊपर, ये मेन टॉपिक्स थे। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं 1-2, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये भी कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, मतलब अगर आपने एक बार रीजनिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, जिन्होंने रेगुलर क्लास लगाई हैं या कंटेंट जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है उसको अगर फॉलो किया होगा, ओबियसली सारे क्वेश्चन वो अवेल होंगे करने के सोल्व एग्जाम में, ठीक है। तो रीजनिंग हमारा ये रहा सेक्शन। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो इसमें देखो 10 क्वेश्चन ही थे, तो इसमें तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम जब कम क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स से कहाँ से आ जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इन्होंने जो आज लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स है वहाँ से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, बहुत ही कम क्वेश्चन उन्होंने पूछे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। मेन क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन थे, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है जैसे उसके ऊपर क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने फीडबैक दिया कि हु वाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑफ सती प्रथा, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे। और उसके अलावा कुछ बच्चों ने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन थे, कुछ टेम्पल्स के नाम थे और उनकी लोकेशन पूछा गया कि ये टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अवार्ड के बारे में भी क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि ये अवार्ड जो है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो हमें अवार्ड्स के बारे में हमेशा प्रिपेयर करके रखना होता है। स्टैटिक जीएस जो होती है उसको भी आपको फोकस करना है,
कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिसेंट अमेंडमेंट चल रहे हैं मेजर, जो मतलब काफ़ी फेमस भी होते हैं, जिन पब्लिक डोमेन में आते हैं, ऐसे अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बन सकते हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो जीके का थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पार्ट कम था, बाकी स्टैटिक जीके जो नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ता है तो वो कर सकता है इसको आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट सेक्शन था हमारा, दैट इज क्वांट सेक्शन। तो क्वांट सेक्शन में, क्वांट के अंदर टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं। मैंने जो अपनी क्लासेस स्टार्ट की, लाइव क्लास, अगर आपको जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट, मैंने फोकस पहले किया इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में तो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इन तीनों को मिला के 3 क्वेश्चन तो इसी से आ गए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। और ये प्रायोरिटी पे हमने कवर करने के लिए बोला था बच्चों को। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ कौन से क्वेश्चन। तो ये मेन टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो बच्चों ने फीडबैक दिया है। इसके अलावा इसके कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कई बार बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम के बाद, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं हमारे, और ये वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, जब भी आप क्वांट की प्रिपरेशन करो तो परसेंटेज आपको हमेशा करना होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऑलवेज आपको करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये तो आपका बैकबोन है पूरे एप्टीट्यूड सेक्शन का। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक्स आपको किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको करने होते हैं, तो आपने यहाँ भी किया, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस रहा इस पेपर का। और मतलब कि जिस बच्चे ने तैयारी स्टार्टिंग से सीरियसली करी है पिछले 2 महीने के अंदर, उन बच्चों के सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है। जिसने एंड मोमेंट तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन को लग रहा है कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, कई बच्चों का ऐसा फीडबैक भी रहा कि भाई हमने जो आपने कंटेंट दिया सारा कुछ वही था, जो आपने पढ़ाया सारे क्वेश्चन वही थे, बट क्या है कि हम मैनेज नहीं कर पाए खुद, ठीक है ना। अपनी वो कमी एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे कि हम उतना याद नहीं रख पाए या हम उतना टाइम नहीं दे पाए पढ़ाई के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम अभी आएंगे और भी ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम है। तो जिनका एग्जाम हो गया है सारे बच्चे अब क्या करेंगे, आज तो फुल डे एंजॉय करो, बस ये वीडियो देख लो, उसके अलावा एंजॉय करना है, सोना है आराम से। कल से फिर आप देखो अगला एग्जाम क्या है आपका, क्योंकि जब तक आपको अल्टीमेट गोल आपकी लाइफ का एक अच्छा स्टेबल जॉब नहीं मिल जाती है, आपको कंटिन्यूशन अपनी प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यूशन में रखनी है और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम लगता है अच्छी चीज़ें मिलने में, इट टेक्स टाइम। कई बार 5-6 साल भी लग जाते हैं, 1-2 साल में भी हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, वो सबका डिपेंड करता है, उसमें लक फैक्टर भी काम करता है, ठीक है ना। किस कंसिस्टेंसी से आप हार्डवर्क कर रहे हो, इट आल्सो मैटर्स। सो डिफरेंट थिंग्स हैं, बस आपको लगे रहना है, जो भी आपके प्लान आपने बनाए हुए हैं उसमें। और जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने पेरेंट्स को भी ये क्लिप मेरी सुनवा सकते हैं कि बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनके ऊपर ऑलरेडी वो खुद ही स्ट्रेस में रहते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि भाई अब बीटेक कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया, सो वी हैव टू अर्न, वी हैव टू डू जॉब फॉर अवर पेरेंट्स, वी हैव टू डू दिस थिंग्स। सो आप पेरेंट्स प्लीज़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, प्रेशर बच्चों पर ना बनाएं, ठीक है। ये क्लिप मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, इस सेगमेंट को आप अपने पेरेंट्स को एक बार बताएं। उनसे मैं डायरेक्ट ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं सारे, और उनको आप ज़्यादा उनसे मतलब प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। उनको एक फ्री हैंड दो, अपने बच्चों को समझो, उनको उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हो। और कंपटीशन है मार्केट में, हर जगह पॉपुलेशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जॉब्स अगर लिमिटेड होती हैं तो हर जगह कंपटीशन होता है। अब बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन सारे बच्चे तो उस जॉब में जा नहीं सकते। मान लिया अगर 500 वैकेंसी है और 50,000 बच्चे अप्लाई कर रहा है, तो सारे तो उस जॉब में जा नहीं सकते। आपका बच्चा मेहनत कर रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट करो, थोड़ा उसको सपोर्ट करो अपनी तरफ से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब अगर चाहिए तो आपको पेशेंस चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। और रिलेटिव्स जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, सबका सपोर्ट चाहिए। तो सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सपोर्ट करें अपने, ठीक है ना, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में। कल वो अच्छी जगह सक्सेसफुल हो जाएंगे, ओबियसली वो आपकी सेवा करेंगे, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। बट अभी जो टाइम होता है ना, क्रिटिकल टाइम, कई बार क्या होता है उस प्रेशर की वजह से जो बच्चा कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो नहीं कर पाता। उसको जल्दी से जल्दी सेट होना होता है, कहीं भी जो मिल जाए काम फिर वो करने लगेगा। अर्निंग मोड में बहुत जल्दी नहीं आना, बच्चे को लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि आपने बीटेक कर लिया और एकदम से बस आप अर्निंग मोड में आ जाओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर कुछ बड़ा प्लान किया है तो टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को समझें, उनसे पूछें क्या उनकी दिक्कत है और अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करते रहें, ठीक है ना। उनको समझाएं, कभी भी उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें और उनको प्रेशराइज ना करें किसी भी तरीके से कि ये क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बड़े बच्चों को मतलब चुभते हैं, कई बार परेशान करते हैं। तो वो जो कर सकते हैं लाइफ में, वो उससे नीचे लेवल पे उनको सेटिस्फाई होना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक है। और बच्चों आप एंजॉय करो, आराम से पढ़ो, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल होता है लाइफ में, बट वो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी जॉब, उनकी ड्रीम जॉब उनको मिलती है और वो आराम से फिर उसको करते हैं, ठीक है। तो आप में से सभी लोग, ऐसा नहीं होता कि कोई पूरी ज़िंदगी नाकाम में रहेगा, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, सभी अल्टीमेटली सेट तो कहीं ना कहीं होना ही है, कोई ना कोई काम तो करना ही है सभी इंसान को, ठीक है ना। तो काम सबके नसीब में लिखा होता है कुछ ना कुछ, वो करेंगे बाद में, बट अभी जो टाइम होता है क्रिटिकल, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जो कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उस तक पहुंचने की ट्राई कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। उसमें टाइम लगता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड नाउ दोज हु हैव अप्लाइड फॉर HPCL एग्जाम। ओके, जैसे अभी एक एग्जाम और हुआ, तो एग्जाम तो साइकिल में चलते रहते हैं, मैनी गवर्नमेंट जॉब्स आर कमिंग इन मार्केट। सो HPCL का वैकेंसी निकला है, जैसे उसके एग्जाम की तैयारी करो, एक अपॉर्चुनिटी वो आएगी, ठीक है ना। उसके लिए फुल एफर्ट करो, जो भी चीज़ें हैं उसमें अंदर सिलेबस जो भी है उसके हिसाब से सेल्फ स्टडी करो, कहीं और से गाइडेंस लो, कुछ भी करो, बस उसकी प्रिपरेशन करो मेहनत करके, ताकि वहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। वो नहीं होगा, कोई और अपॉर्चुनिटी आएगा, ये चलता रहता है साइकिल, कभी एंड नहीं होता, ठीक। और बच्चे उसमें फिट होते रहते हैं साइकिल के अंदर, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगला एग्जाम आपका HPCL आने वाला है। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, सीरियसली होकर तैयारी करें, मोटिवेट रहें, एक दिन आपको मिलेगा आपका ड्रीम जॉब। ओके, ऑल द बेस्ट।